Okay, good morning. I'm audible too. We were discussing about the linked list, and in the last class, total implementation of linked list has been discussed. Now, we can see some application of linked list, like representation of queue with the help of linked list. Okay, so already we have covered the portion of queue, and you know what is queue, how this data structure works, what is its working rule, and all. Along with, we also read about circular queue, priority queue, and all those things. Now, as we have already implemented that queue using array, now our task is to again implement that queue using linked list. To variation or to representation we can see. Okay. So using array, when we implemented queue, that was our static implementation, or the representation of that queue was static, because there was a limited amount of memory using which we can represent that queue, but the numbers of limited we can insert in that static queue is limited. In case of linked list, the number of elements are not limited, and you can choose any number of elements to insert in the queue based on your conditions, as the dynamic memory allocation will be given for all the elements of the queue, so that there is no necessity to declare the size of the queue at the beginning. What we did in the array, using array implementation using array, we at the beginning we had to declare the size, like max size and all, but here no such kind of declarations are needed. And as you know, the same implementation, like using linked list, we have to create the nodes, along with we have to modify the links from one node to each node. Actually, the difference between the simple insertion deletion with the insertion in queue and insertion and deletion with the queue is, there is a certain rule for queue, which is first in, first out. The FIFO concept are followed in. FIFO concept is followed in queue, where the element which has been inserted first will be removed first. So this is the only difference. Only difference between queue and a simple insertion deletion. Okay, now simple insertion deletion we have already read about in the previous class using the linked list. But now we will see how to implement the queue in using says linked list. Okay. So there is nothing much theory portion to discuss about. Still, I should show you the which we already followed, and this, I think this notes also have been uploaded in your site, so you can follow this note from there. This is a portion of a screenshot of your book, that is the data structure book by Lipschutz. So this book is recommended in your syllabus section.
सो क्यू में क्या बोला जा रहा है कि जिस एलिमेंट को हम लोग पहले डालेंगे वो पहले आउट हो जाएगा, जिसको बाद में डालेंगे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके वो डिलीट होगा। देन रियर और फ्रंट क्या है ये हम लोग को पता है, फिर भी एक बार रिकैप करते हैं। रियर और फ्रंट है कि जब जिस एंड से क्यू से एलिमेंट डिलीट होता है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड, और जिस एंड से क्यू में इंसर्ट होता है उसको बोला जाता है रियर एंड। तो ये जो सर्टेन क्यू है यहाँ पे कुछ ए बी सी डी करके, डायग्राम में अगर मैं पूछूं कि आपका फ्रंट एंड कहाँ है, कौन सा एलिमेंट आपका फ्रंट एंड डिनोट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो DDD, दिस एलिमेंट इज our front end, or front end is denoting this DDD element because it has been inserted first. तो ये कैसे पहले इंसर्टेड हुआ वो कैसे पता चल रहा है, हम लोग को एरो देख के पता चल रहा है कि कौन पहले आया है। तो पहले DDD आया है लाइन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, दैट मीन्स अ लाइन। तो लाइन में क्यू पहले खड़ा था, DDD पहले खड़ा था, उसके बाद CCC आया, फिर उसके नेक्स्ट पोजीशन में बीबीबी जाके खड़ा हो गया, ठीक उसका नेक्स्ट पोजीशन में ए जाके खड़ा हो गया। So in this scenario, DDD is denoted by the front end and AAA is denoted by the rear end. तो अगर नया कोई एलिमेंट डालना पड़ेगा तो एरो थोड़ा अलग से दिया है, लेट्स चेक। ओके, ये बोल रहा है कि AAA is our front end because they are saying that AA has came fast. इसलिए एरो का मतलब ये है कि पहले ये आया है, इसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के show कर रहा है कि इसके बाद BBB आया है, अच्छा BBB बाद के CCC आया है। So whatever the way you follow in that specification, using that specification your front and rear end will be chosen. तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं ए को पहले डिलीट किया गया, दैट मीन्स डेफिनेटली ए इज फ्रंट एंड एंड योर rear end is, from that end the new elements will be inserted. E DDD के बाद इंसर्ट हुआ है, F भी इंसर्ट हुआ है, so your rear end now FFF this node. कि फ्रंट एंड से डिलीट होता है और रियर एंड से इंसर्ट होता है, दिस टू एंड्स आर डिफरेंट। अच्छा, बिगिनिंग में जब क्यू एम्प्टी रहता है एट दैट टाइम फ्रंट और रियर किसी को डिनोट नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट भी नहीं है इंसर्ट करने के लिए, और मतलब कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इंसर्टेड है, सो इसलिए रियर किसी को डिनोट नहीं कर सकता और फ्रंट भी किसी को डिनोट नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फ्रंट एंड से डिलीट भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई एकदम बिगिनिंग में क्यू में कुछ एलिमेंट जब नहीं है, इनिशियल स्टेज में रियर और फ्रंट दोनों का वैल्यू होता है -1, तो सेट बाय -1। जैसे ही एक एलिमेंट वहां पे डालते हैं तो फ्रंट और रियर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट डालने से फ्रंट और रियर दोनों इंक्रीमेंट होता है, राइट, लेकिन सेकेंड एलिमेंट डालने के बाद फ्रंट एज इट इज रहता है, सिर्फ रियर इंक्रीमेंट होता है। थर्ड एलिमेंट डालने के लिए भी रियर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फ्रंट एज इट इज रहेगा। तो जब एम्प्टी क्यू से एक एलिमेंट आता है तो फ्रंट और रियर को एक लोकेशन डिनोट करने का डिनोट कर सकता है ये, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट होने से उसको डिलीट भी किया जा सकता है और उसके बाद नया एलिमेंट इंसर्ट भी किया जा सकता है, सो दैट when there is only one element in the queue, front and rear denotes that element. But after inserting multiple number of elements, what happens that the first node is front denote the first node and rear denote the last node. Okay, now it is clear.
तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार यहाँ पे रिकैप किए। हम लोग अगर इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा क्यू में। क्या था वो, अगर आप लोगों को याद है, what condition check is needed to perform at the time of insertion of element in the queue? This is the overflow condition. तो ओवरफ्लो कंडीशन हम लोग कब चेक कर सकते हैं? ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब है कि क्यू में कोई एलिमेंट डालने का क्या बोल सकते हैं, प्रोविजन है कि नहीं, इज देयर एनी एम्प्टी स्पेस टू insert an element in the queue. Now, as we implemented our queue using array, so what happens, array has a limited space, ठीक है? तो वहां पे हम लोगों का ओवरफ्लो कंडीशन के चेक करने का जरूरत है, क्योंकि मेरे मनचाहे एलिमेंट मैं वहां पे नहीं डाल सकती कितना भी, जैसे और सपोज 50 लोकेशंस अवेलेबल है तो हम लोग 100 एलिमेंट्स उसमें नहीं डाल सकते. So that's why you need to check the workflow condition before inserting the element. But as we are implementing now using linked list, तो linked list में क्या होता है, डायनामिक एलोकेशन होता है. तो डायनामिक एलोकेशन का एक एडवांटेज है कि उसमें कुछ पीस लिमिटेड नहीं होता है. So as per your choice you can insert as many as element you want. ठीक है, जितना चाहे आप एलिमेंट वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, बिकॉज द मेमोरी इज allocated dynamically and every time you have to create a node like malloc, suppose struct node start, then struct node star malloc size of struct node, ऐसे करके हम लोग करते हैं. where struct node is your the specific structure, we structure template is developed for linked list representation. तो ये हम लोग बहुत बार देखे हैं कि कैसे नोड क्रिएट करना है. जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना है अगर लिंक्ड लिस्ट यूज करके, तो हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करना है. और अंडरफ्लो कंडीशन के लिए क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन डेफिनेटली हम लोग को चेक करना पड़ेगा. अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है और मैं उसको लिंक्ड लिस्ट यूज करके इंप्लीमेंट किया और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, डिलीट करने का कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना. तो अगर कुछ डिलीट करने का बचता नहीं है, then that is the underflow condition. So in case of queue implementing using linked list, we definitely have to check underflow condition before deletion of the element or deletion of any element, but we no need to check the overflow condition. But condition applied कि अगर suppose as per the requirement, suppose in your program you have decided that no matter what data structure I will use, maybe array, maybe a linked list, but the numbers of element or size of element I want to fix as limited. अगर आप फिक्स करना चाहते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट आप डालना चाहते हो, then definitely you can declare the size of the queue. Then what happens that every time you are creating a new node for insertion, before that you have to say whether the number of nodes has been reached to the size which has been previously declared. If it is reached to that value, then you have to stop and you cannot insert, because the condition you have implemented, you have imposed. Okay, अगर आप खुद ही उस कंडीशन को इम्पोज किए हो, then you have to check. Otherwise, no such hard and fast rule to check the overflow condition before inserting the element in the queue where you have implemented the queue using linked list. Now, I think it is clear कि यहाँ पे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए क्या रूल अवेलेबल है. Okay, so let's now see the तो पहले हम लोग कोड को ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ अवेलेबल है जो हम लोगों को देखना है.
तो कोड यूज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का बस इंसर्ट हो सकता है क्यू में, क्यू कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंग्लिश यूजिंग क्यू. Actually, name is bit incorrect. I should have write using linguist. So there is a mistake. Okay. So I think you can understand. So at that time, I will post. I will change the name. Okay, just I will post in your Google Classroom. I will change the name. Okay. So let's check how many functions are needed here. ठीक है, तो पहले stdio.h header फाइल तो हम लोग को चाहिए था, और std.lib.h किस लिए चाहिए, तो हम लोग डायनामिक implementation कर रहे हैं, right? We are implementing our queue dynamically using linked list. So create the dynamic node using linked list. We need this stdlib.h because the definition of this malloc is in stdlib.h. Yes, definition of this malloc is in stdlib.h. Okay. So you can see in this program, no maximum size has been declared. So that means we don't have to check the overflow condition. Okay, we don't have to check the overflow condition. Okay. The last program of the queue, probably we had created a different function for checking overflow and underflow. But what you can do is, without creating a separate function, you can embed that thing in your just deletion operation. Then also it will work. ठीक है, अलग से overflow underflow condition check करने के लिए function का डिक्लेरेशन जरूरत नहीं है. आप साथ ही साथ कर सकते हो कि पहले चेक कर लिया कि कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और रियर किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट एंड रियर. मान लो फ्रंट का वैल्यू अगर -1 है, then definitely you will not proceed to delete any element. So front, that means the element which has been denoted by the front will decide that whether what is the condition now, whether it is underflow or not. तो अब लोगों को पता है कि हम लोग जैसे यहाँ इंसर्शन करने के लिए और क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे. तो डेफिनेटली लिंक लिस्ट को पॉइंट करने वाला जो पॉइंटर होगा, या द वेरिएबल व्हिच आर पॉइंटिंग दैट थिंग, दैट लोकेशन, दैट विल बी स्ट्रक्चर टाइप. स्ट्रक्चर पॉइंटर. तो हम लोग देखेंगे फिर कि कैसे हम लोग का टेम्पलेट, नोड का टेम्पलेट बन रहा है. तो नोड का टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है वो हम लोग को पता है. स्टार्ट नोड, देन इन नोड नेक्स्ट. तो ये है हम लोगों का टेम्पलेट. इसका एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है. तो आई थिंक यू ऑल हैव studied about the structure, function, and all those available things in C. Okay, तो I think आप लोग C language थोड़ा clear कर लिए हो, तो you know about these things. तो structure का template यहाँ पे create हो गया. structure variables, structure members here. तो ये जो struct node करके मेरा structure template create हुआ है, इसका अंदर दो एलिमेंट है, इन डेटा और struct node standards. इसको बोला जाता है structure member. तो दो मेंबर है, एक है डेटा, दूसरा है नेक्स्ट. अब struct node star front, ये क्या काम करेगा. front is a structure variable which will denote the which can denote a node. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल तो हम लोग क्रिएट किए हैं, लेकिन इसके लिए कोई मेमोरी हम लोग एलोकेट नहीं किया. this is just I have declared the name, but no memory is allocated for this front. As well as again it is written struct node star here. तो यहाँ पे
रियल में भी कोई मेमोरी हम लोग एलोकेट नहीं किए हैं, तो ये क्या करेगा, जस्ट इट विल बी यूज्ड एज द नेम व्हिच कैन डिनोट द नोड, तो वो दूसरे नोड को डिनोट कर सकता है। नाउ देयर आर 3 फंक्शंस, void insert, void delete one, void display। तो 3 फंक्शन है कि एक तो क्यू में हमें इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है, और फिर प्रेजेंट कंडीशन क्या है क्यू का, कितना एलिमेंट है और क्या डिलीट हुआ है, क्या इंसर्ट हुआ है, वो देखने के लिए डिस्प्ले फंक्शन है। सो वी नीड 3 फंक्शंस हियर, दिस आर इनफ। ओके, तो हम लोग आई थिंक पिछले लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी डिस्प्ले को अलग से यूज किए थे, डिस्प्ले के लिए अलग से हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे आज एक नया चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं कि हम लोग पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कितना एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है या कितना एलिमेंट डिलीट करना है। इट विल डिपेंड एट द टाइम, इट विल बी decided at the time of running the code, and at that time I will ask the input from the user. As per the user input that or user choice, the this insertion and deletion will be performed। जैसे कि सपोज आप यूजर से पूछे कि क्या करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या डिस्प्ले करना है, सपोज वो ऑप्शन 1 डाला, देन आपका इंसर्शन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ऐसा करके, तो सपोज हो सकता है कि आपका जो यूजर है वो मल्टीपल इंसर्ट करना चाहता है, तो फिर हम लोग को ये जो हम लोग क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि कितनी आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये कितनी बार हमें पूछना पड़ेगा। तो देयर इज अ नेसेसिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, बट हाउ मेनी टाइम्स आई विल आस्क, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द यूजर कि क्या आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो बोला हाँ, तो फिर वो वैल्यू डाला। फिर से आप पूछ रहे हो क्या आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो फिर से बोला हाँ, फिर से एक वैल्यू डाला। फिर से आप पूछे कि क्या आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो सपोज बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू, तो फिर क्या करना है कि हमें स्टॉप करना है वहां पे, वी आर नॉट गोइंग फॉर द इंसर्टेड एलिमेंट इन द क्यू। तो ये डिसाइड करना कैसे क्या करना है कि ओके, यहाँ पे जैसे एक लिमिटेशन दिया गया है, ठीक है, कि कितना चॉइसेस हम मैक्स टू मैक्स डाल सकते हैं। तो वो मैक्स टू मैक्स 4 चॉइस हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। चॉइस इक्वल्स टू 4। तो okay, so the thing is that this is called मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो ऐसे अगर कुछ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ये टोटल थिंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चॉइस करके देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो ये चॉइस वेरिएबल है। ये क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा, बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा कि कौन सा फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, उसका क्या बोल सकते हैं उसको, उसको जस्ट हिट करेगा, ठीक है। इट विल हिट द चॉइस मेड बाय द यूजर। कैसे कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, स्विच केस का इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले यहाँ पे एक व्हाइल लूप दिया हुआ है। व्हाइल लूप क्या काम कर रहा है, यहाँ पे व्हाइल लूप काम कर रहा है, व्हाइल लूप जस्ट टेकिंग द चॉइस नॉट इक्वल्स टू 4। तो मतलब किसी यूजर का चॉइस, अगर चॉइस का वैल्यू यहाँ दैट वी हैव इनिशियलाइज्ड एनी वैल्यू टू चॉइस, ठीक है, चॉइस में कोई वैल्यू नहीं है। इसमें क्या होगा कि गार्बेज वैल्यू एकदम पहले से जब आप कोई भी इंटीजर वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट वहां पे गार्बेज वैल्यू आ जाता है, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो पहले हम लोग चेक कर ही सकते हैं कि चॉइस का वैल्यू 4 नहीं है। अगर 4 नहीं होता है देन दिस व्हाइल लूप विल बी एक्जीक्यूटेड, things will be implemented. So now we are sure that as value of choice not equals to 4, because this is the given condition, then program or the instruction written inside this will be executed. Now,
the conditions or instructions are written in the while loop, let's check. तो while loop में क्या instruction दिया गया है, पहले बोला गया है यहाँ पे just एक print कर रहा है main menu, nothing special there. Again some print दे रहा है, just यहाँ पे जैसे show करेगा ना result, उसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये सब किया गया है. नेक्स्ट जो आता है, जो कि बोला जाता है असली चीज है, वहां पे क्या बोला जा रहा है, लिखा गया है कि विदिन द कोटेशन स्लैश इन वन डॉट इंसर्ट. तो स्लैश इन का मतलब क्या है, ये न्यू लाइन में ये सारा चीज प्रिंट होगा, ठीक है. स्लैश इन, फिर वन डॉट इंसर्ट मतलब वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंसर्ट एंड एलिमेंट. तो वन डॉट इंसर्ट एंड एलिमेंट हम लोग लिखते हैं. स्लैश इन न्यू लाइन का मतलब है न्यू लाइन. अगेन ऑप्शन 2 डिलीट एंड एलिमेंट. तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये लिखा है. तो के लिए लिखा है डिलीट एंड एलिमेंट, 3 के लिए लिखा है डिस्प्ले द क्यू, 4 के लिए लिखा है एग्जिट. एक्चुअली यहाँ पे 4 के लिए क्या लिखा गया है, एग्जिट. तो 4 किस चीज के लिए काम करता है, 4 वैल्यू नाउ हियर इट इज वर्किंग फॉर एग्जिटिंग द व्हाइल लूप, ठीक है. व्हाइल लूप को एग्जिट करने के लिए ये यूज होता है. तो ये स्विच केस आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग में है, तो ये स्विच केस के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना. तो स्विच केस में क्या होता है कि इट वर्क्स एज द entry point of the choice. Switch is the entry point of the choice, and inside the switch cases are written. So whatever the value is passed through this choice, based on that the cases will be implemented. इम्प्लीमेंट होता है, जैसे चॉइस का वैल्यू यहाँ पे स्कैन करके चॉइस का वैल्यू ले लिया एम्परसेंट चॉइस. तो सपोज आपका यूजर यहाँ पे वैल्यू 2 टाइप किया, सर ये 2 टाइप किया, तो चॉइस में कौन सा वैल्यू आया 2. तो स्विच विदिन द ब्रैकेट चॉइस क्या है अभी, द वैल्यू ऑफ चॉइस इज नाउ 2. अगर चॉइस का वैल्यू 2 होता है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे केस इंप्लीमेंट होगा, मतलब चॉइस का जो वैल्यू होगा ना उसके उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग केस इंप्लीमेंट होगा. तो हम लोग टोटल 4 केसेस के लिए कोड लिखेंगे. दिस आर द कीवर्ड केस, देन राइट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चॉइस, ठीक है. तो चॉइस का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रिंट में हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे हैं कि इंसर्ट करने के लिए मैं 1 प्रेस करूंगी, डिलीट करने के लिए 2 प्रेस करूंगी, प्रेस करूंगी, और एग्जिट करने के लिए 4 प्रेस करूंगी. तो डेफिनेटली चॉइस का 4 वैल्यू हो सकता है. तो वी हैव जस्ट रिस्ट्रिक्टेड इट दैट चॉइस मे टेक 4 वैल्यू. It may take more other values, but for a valid choice, we have to press either 1 or 2 or 3 or 4, ठीक है. तो इसमें 4 केस ही हम लोग का बनेगा, केस 1 केस 2. यहाँ पे जो सिंटैक्स है ये बताता है कि switch is within the bracket you have the value is given to the variable name. Based on that value the cases will be implemented. जैसे हर केस लिखा गया है, तो हम एक के बाद एक बता रहे हैं. तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स ये है, after space we have to write some integer value. तो हम लोग कुछ कैरेक्टर वैल्यू भी पास कर सकते हैं, बट इंटीजर वैल्यू इज वेरी नाइस टू हैंडल. तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लिखेंगे. the specific syntax of this case thing is case space then some integer value then colon, ठीक है. यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो this is our case 1, ठीक है. अंदर केस के अंदर आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या केस 1 के लिए मतलब 1 स्विच ऑन होने के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा वो आप पे डिसाइड होता है, आप पे डिपेंड होता है. तो इंसर्ट करना चाहते हो आप बेसिकली, सो दैट यू हैव कॉल दिस इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन हम लोग देखो पहले ही यहाँ पे लिख के रखे हैं. सो दिस फंक्शन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू inserting the element in the queue. आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डाल सकते हो, doing insertion operation, and you can write over here after
writing this case 1, and at last to exit from case 1 you have to break. केस में आपको क्या लिखना पड़ता है कि स्विच ब्रैकेट में एक वेरिएबल डालना पड़ता है, उस वेरिएबल का वैल्यू के हिसाब से केस इंप्लीमेंट होता है। जैसे चॉइस का वैल्यू अगर कभी 1 हो जाता है तो इंप्लीमेंट होगा। चॉइस का जितना वैल्यू पॉसिबल है उस सारे वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग केसेस बनाना पड़ेगा। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 बना लिए, और हर केस क्या जो इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन होगा या जो कोड लिखना है वो लिखने के बाद हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा टू एग्जिट फ्रॉम द केस। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालती हूँ तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट तो सारा इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करेगा। जैसे तो केस 2 को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। The case we have to write this break, and this is also a keyword. So in this way we implement the switch cases. तो यहाँ पे देखो केस 2 में क्या लिखा गया, delete 1 फिर break। केस 3 में क्या लिखा गया, this display then break। केस 4 में क्या लिखा गया है, exit 0। So exit 0 our it is our explicit function defined by your system to exit from the current लूप, ठीक है। तो करंट लूप जो है उससे आप एग्जिट करने के लिए एग्जिट 0 यूज कर सकते हो। करंट लूप इज व्हाइल लूप। टू एग्जिट फ्रॉम दिस लूप we can use this exit function. So exit within the bracket we write any integer। तो 0 यहाँ पे लिखा गया, you can write 1 2 3, doesn't matter, some integer value is required to write there। So this is your case 4, then break। then switch case में last में क्या आता है, default। so default is our keyword, डालना पड़ता है। अभी कोलोन हम लोग डालें, उसके बाद हमें क्या लिखना है कि एंटर वैलिड चॉइस। तो डिफॉल्ट केस कब इंप्लीमेंट होता है कि जब आप 1 2 3 4 ना डाल के 5 डाल दे, तो चॉइस का जो यहाँ पे स्कैन करके वैल्यू लिया जा रहा है, वहां पे सपोज आप 5 प्रेस कर रहे हो, तो 5 इज नॉट एनी ऑप्शन रिटन इन द केसेस लाइक केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में ये 5 ऑप्शन लिखा ही नहीं है। देन इट विल गो फॉर द default will be activated and it will print that enter a valid choice। यहाँ पे कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है enter a valid choice, I can write your choice is incorrect, ऐसा भी लिख सकते हैं। It depends on you। So this is the total switch case। okay, ये टोटल स्विच केस हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चॉइस डालना है, और चॉइस का वैल्यू अगर 4 नहीं होता है तो इट विल बी रिपीटेड। ठीक है, स्टॉपिंग कंडीशन यही है कि चॉइस का वैल्यू जैसे ही हम 4 डाल देंगे वैसे ही व्हाइल लूप का यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया है उसको वो क्या होगा कि वो वायलेट कर जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस व्हाइल लूप एक्चुअली इनफाइनाइट लूप हियर। तो ये इनफाइनाइट टाइम रन कर सकता है, कितना टाइम रन करेगा वो पहले से डिसाइडेड नहीं है, और इसको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, जैसे कि एंट्री टाइम लूप में घुसते वक्त वहां पे एक कंडीशन दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री में ही कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं कि ये लूप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का डिफरेंट कंडीशन हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसे चेकिंग choice not equals to 4 is written। तो हम लोग डिटेल में पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। तो स्विच केस के बारे में हम लोग को पता चल गया। तो स्विच केस एक्चुअली कैसे काम कर रहा है उसको अगर हम लोग थोड़ा देख लेना चाहते हैं बिफोर इंसर्शन एंड डिलीशन, just to see that how it works, we can run this code once। I'm running compiling this one then executing। okay, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे मेरा प्रोसेस था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था मेन मेनू। तो यहाँ पे देखो मेन मेनू टाइप का है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो अंडरलाइन किया गया था ऐसे, तो क्या बोल सकते हैं डिजाइन बना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है स्लैश n मतलब न्यू लाइन, देन ऑप्शन 1 डॉट इंसर्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डॉट इंसर्ट एलिमेंट, 2 डॉट डिलीट एंड एलिमेंट, 3 डॉट डिलीट
and in the statement there is a new line, that's why everything is printed here in the next line and so on. 4 ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे चॉइस में क्या वैल्यू डालूं? अगर मैं 1 डालती हूँ दैट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट द इंसर्शन फंक्शन, ठीक है, इंसर्शन फंक्शन इट विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे इंसर्शन फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, बट वी नो इट विल इंसर्ट। सो आई एम राइटिंग अ वैल्यू, एंटर द वैल्यू, आई एम राइटिंग 56, टाइपिंग 56, देन आई एम रनिंग। ओके, दैट मींस 56 एंटर हो गया है। अगेन इट इज आस्किंग फॉर the loop is running. Okay, so again suppose I am pressing 1, that means it will again insert, so I am writing 45, so insertion has been done। ऐसा करके 4 प्रेस करती हूँ या 3 प्रेस करती हूँ। 3 प्रेस करने से क्या है कि ये डिस्प्ले करेगा, तो देखो डिस्प्ले कर रहा है 56 45। अब देख सकते हो कि जो पहले हम लोग टाइप किए तो पहले आया है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 45। जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे चॉइस में 4 डालती हूँ तो ये लूप एग्जिट होगा, तो मैं 4 डाल रही हूँ, लूप इज एग्जिटेड। देखो प्रोसेस हैज बीन एग्जिटेड। तो ऐसे करके मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब मुझे देखना है कि ये जो इंसर्ट फंक्शन हो या डिलीट फंक्शन हो, ये कैसे लेट्स तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, void insert फंक्शन पे यहाँ पे कॉल किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा शायद हमें हेल्प लेना पड़ेगा, तो मैं इसको इनिशियल यहाँ पे ऐसे इसको रख रही हूँ। क्या किया, देखो स्टार्ट पीटीएफ मतलब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिक्लेयर किया है। दे आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम क्या है, पीटीआर। आई एम राइटिंग पीटीआर, सो दे आर variable start ptr in the line 45। देन int item, एक वेरिएबल क्रिएट किया है item करके। item एक वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल हो गया मेरा, जिसका टाइप है इंटीजर, राइट। देन ये क्या कर रहा है, पीटीआर में एक नोट क्रिएट कर रहा है, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट कर रहा है। तो मेमोरी एलोकेशन डालना है, मेमोरी एलोकेशन का जो टेम्पलेट होता है